اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، بافضل ربی آج ہمارا دا کرمنل جسٹس سسٹم آف پاکستان کا پارٹ 25 ہے اور ٹرائل کا نمبر 10 ہے پارٹ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا ٹاپک جو اس کرمنل جسٹس سسٹم کے تابع چل رہا ہے وہ ہے چارج۔ اس میں بیٹا گزارش کرتا جاؤں، تھوڑا سا ریوائز کریں گے، زیادہ نہیں۔ چارج کا آپ لوگوں کو جو پریویس لیکچرز ہیں ان کو آپ لوگ غور سے سن لیں، دیکھ لیں، ایک ایک چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب چارج کیا ہے، دوبارہ تھوڑی سی ریویژن ہے، زیادہ نہیں ہے۔ بیٹا جب ایف آئی آر ہو گئی انڈر سیکشن 154 سی آر پی سی کے مطابق، اس کے بعد تفتیشی افسر صاحب نے انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد پھر چالان، جسے پولیس رپورٹ کہتے ہیں، انڈر سیکشن 173 پبلک پراسیکیوٹر کے ذریعے کورٹ میں آئے گی۔ مجسٹریل کورٹ ہے، یقیناً پاکستان کا جو ہمارا نظام ہے، اگر سیشن ٹرائل ہے پھر بھی پہلے علاقہ مجسٹریٹ کے پاس چالان آئے گا، جسے پولیس رپورٹ کہتے ہیں، علاقہ مجسٹریٹ صاحب پھر کورٹ آف سیشن میں بھیج دیتے ہیں۔ اچھا بیٹا اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں، جب رپورٹ آ گئی 173 کے مطابق سی آر پی سی کا، پراسیکیوٹر صاحب نے اسے فارورڈ کر دیا۔ اب عدالت میں مجسٹریل ٹرائل کی ہم مثال لیتے ہیں۔ مجسٹریٹ نے مجسٹریل ٹرائل کورٹ نے پولیس رپورٹ کو دیکھا، اس کے بعد اگر اکیوزڈ کا کالم کا بھی بیٹا آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں، سپوز کہ اکیوزڈ ہیں کالم نمبر 3 میں یا 4 میں، تو ان کو کورٹ نے سمن کر لیا انڈر سیکشن 204 سی آر پی سی ریڈ ود 190 سی آر پی سی۔ اب اکیوزڈ آ گئے، کاپیز سپلائی ہو گئیں، اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیج ہے فریمنگ آف چارج کے لیے۔ جب اکیوزڈ اس کے بعد آئیں گے، 7 دن کا اس میں ٹائم ہے، لیکن عموماً تھوڑی سی زیادہ پیشی ہو جاتی ہے اگر انڈر ٹرائل انڈر کسٹڈی اکیوزڈ ہوں۔ مین بیٹا انڈر کسٹڈی اگر ہے مجسٹریل ٹرائل، پھر 15 دن سے زیادہ پیشی نہیں دی جاتی۔ سیکشن اس پر آپ دیکھ لیں، اس کا یقیناً 344 ہے سی آر پی سی کا، جسے ہم جوڈیشل ریمانڈ کہتے ہیں اس میں۔ لیکن سیشن ٹرائل میں سیشن کورٹ کے لیے یہ 15 دن کی پابندی نہیں ہے، یہ صرف مجسٹریٹ کے لیے ہے۔ بیٹا اب آ جائیں چارج پر۔ آپ کو بتا دیا سابقہ لیکچرز میں ہے، ہر افینس کا علیحدہ چارج فریم ہوگا۔ اکیوزڈ ہے، اس نے سپوز 1 جرم کیا، 2 کیے، 3 کیے، 4 کیے، 5، 6 یا 7، ہر ایک کا بیٹا سیپریٹ چارج فریم ہوگا۔ اس کی بابت کیا ہوگا، پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں اس کے فارمیٹس چارج کے، کہ ڈیٹ ہے، ٹائم ہے، پلیس ہے، افینس کی پارٹیکولر ڈسکرپشن ہے، افینس کا نام ہے، ساتھ سیکشن ہے۔ مقصد کیا ہے چارج کا، اکیوزڈ کو بیٹا نوٹس ہے کہ اکیوزڈ کو پتہ چل جائے کہ اس کے خلاف ایلیگیشنز کیا ہیں۔ اب اسی کی جو سیریز ہے نا، دیکھیں یہ آج ایسے سمجھیں ہمارا الحمدللہ لاسٹ لیکچر ہے چارج کا، لیکن اس میں آپ لوگوں کو میں اسٹریٹجی آج کے لیکچر کی تھوڑی سی بتا دوں۔ لیکچر بھی آج مختصر ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اس میں 4 کیس لاز ہیں، 1-2 اور بھی کوشش کروں گا شامل ہوں گے، وہ آپ لوگوں کو میں واٹس ایپ گروپ میں بیٹا شیئر کر دوں گا۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم پورے چارج کا جو ہمارا ہے نا، یہ چیپٹر 221 221 سے 240 تک یہ جاتا ہے، اس کو ہم ریوائز کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے بیٹا، یہ انتہائی اہم ہے، اکثر امتحان میں پوچھا جاتا ہے، انٹرویو میں بھی آ جاتا ہے۔ اس کے بغیر آپ ایسے سمجھیں ٹرائل درست نہیں ہوتا۔ آنریبل کورٹ سے اگر غلطی ہو جائے
फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में यकीनन फिर जजमेंट में भी गलती आ जाती है। जब ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या फेडरल शरीयत कोर्ट में मामला जाता है, केस अक्सर रिमांड हो जाता है सिर्फ इसी चार्ज की वजह से। बहुत सारी मिसालें हैं, पहले भी आप लोगों को दे चुका हूं कि इस चार्ज की वजह से ये रिमांड हुआ है केस। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मसाइल पैदा होते हैं। अब ये सेक्शन का जो आप लोगों को बता रहा था ना बेटा, पहले आप लोगों को यकीनन बता चुका हूँ, ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस, कि अगर एक से ज़्यादा जराइम हो गए, ऑफेंसेस हैं एक्यूज़्ड के, उसका क्या तरीक़ाकार होगा। वही बेटा कि चार्ज अलग-अलग होगा हर ऑफेंस का, लेकिन ऑफेंसेस एक से ज़्यादा कैसे हैं इसी में सारी तरतीब बताई गई है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। पहले एब्डक्शन या किडनैपिंग की, टार्चर किया विक्टिम पर अक्यूज पर्सन ने, उसके बाद चाहे वो ये मर्डर कर देते हैं। अब देखें ना, 3 या 4 ऑफेंसेस हो गए कम अज़ कम। किडनैपिंग आ गई, टार्चर आ गया, हल्ट आ गया, मर्डर आ गया। अब मैक्सिमम तो मर्डर की सज़ा होनी है ना 302 में, लेकिन एब्डक्शन को भी साथ रखेंगे और हल्ट की हद तक भी देखेंगे, या इसको ज़्यादा आसानी से समझने के लिए आप अक्यूज्ड ज़्यादा समझ लें या विक्टिम ज़्यादा समझ लें। बाज़ का जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें कुछ लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, कुछ लोग मारे जाते हैं, कत्ल हो जाता है। उन हालात में क्या होता है बेटा, ये 235 इसी को डील करता है। उसके बाद आप आ जाएं, व्हेन इट इज़ डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। यही है बेटा बात कि जब चार्ज फ्रेम हुआ, पता नहीं है, एविडेंस अभी नहीं हुई, सिर्फ पुलिस रिपोर्ट है जज साहब के सामने, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग सारी है पुलिस फाइल की शक्ल में। अब क्लियर नहीं है कौन सा जुर्म हुआ या मुल्ज़िम कहाँ बताता है कि उसने क्या क्या किया है। प्रोसिक्यूशन, कंप्लेनेंट साइड या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब किस नतीजे पर पहुँचे। फ़िलहाल उन्होंने वो चार्ज फ्रेम कर दिया, लेकिन एविडेंस में पता ये चलता है कि अक्यूज ने और भी जुर्म किया था। अब ये सबसे अहम बात इस लेक्चर की बेटा गौर से देख लें। अदालत ने, मिसाल दे रहा हूँ आपको, 5 या 6 हेड बनाए चार्ज के, चार्ज फ्रेम हो गया अक्यूज के खिलाफ। मैं मिसाल दे रहा हूँ बेटा आप लोगों को कि उस पर एलिगेशन है F2 का, F5 का, F4 का, लेकिन एविडेंस में आ गया कि 337A6 A5 भी था या 324 भी था। नेचर ऑफ इंजरीज इस तरह की हैं, मेडिकल में भी सपोर्टिंग है। मिसाल दे रहे हैं कि मेडिकल में दिया गया है लेकिन चार्ज फ्रेम करते हुए बड़ा जुर्म नहीं लिखा गया, छोटे जुर्म के ताबे चार्ज फ्रेम हुआ है, एविडेंस हुई है। अब ये एक असूल हमेशा जहन में रख लें बेटा, जब छोटे चार्ज की एविडेंस रिकॉर्ड हुई हो, जब जजमेंट प्रोनाउंस करते वक्त पता ये चले कि इसने बड़ा जुर्म भी कोई किया था, जैसे 324 की मैं आप लोगों को मिसाल दे रहा हूँ, या 337 A3 की, 337 A3 या A4 की, तो अदालत उस मुल्ज़िम को ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकती उस चार्ज में जो उस पर फ्रेम नहीं हुआ। गौर से इसको दोबारा सुन लीजिएगा। अब इसके उलट एक बात सुन लें कि चार्ज फ्रेम हुआ 337 F5 का, A3 का, लेकिन 337 F2 या F3 का चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। अदालत छोटी सज़ा तो कर सकती है जिसका चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, लेकिन बड़ी सज़ा नहीं दी जा सकती जिसका चार्ज फ्रेम नहीं हुआ या एविडेंस नहीं हुई। उसका फिर तरीक़ाकार ये है कि चाहे जजमेंट प्रोनाउंस करते हुए जजमेंट प्रोनाउंस नहीं की जाएगी, जज साहब रीज़न लिखेंगे, आर्डर लिखवाएंगे इसी हिसाब से, उसके बाद फिर उसका दोबारा ट्रायल होगा, चार्ज फ्रेम होगा। ये है इंतहाई अहम बात। उसके अलावा बेटा ये 237 को आप देख लें, व्हेन अ पर्सन इज चार्ज विद वन ऑफेंस ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ अनदर। यही बात है जो आप लोगों को पहले बता चुका हूं। अब ये देखें ना, व्हेन ऑफेंस 238 को देख लें, प्रूव्ड इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज्ड। अब देखें ना कि जुर्म तो साबित हो गया, वही बात जिन जिन में चार्ज हुआ था ये तो अच्छी बात है, जिन में चार्ज नहीं हुआ, अगर छोटे ऑफेंस हैं उसमें अदालत सज़ा दे सकती है, यही है इसमें बात। अब बेटा ये
इंतहाई अहम चीज़ है कि 239 को आप गौर से देख लें कि किन किन मुल्ज़मान का इकट्ठे ट्रायल हो सकता है या एक मुल्ज़िम का इकट्ठे ट्रायल कैसे होगा। ये असूल इसमें बताए गए हैं 239 में। पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि बेटा ये वेरी सिंपल है। अब पहला इसका आप देख लेना, इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन अगर अफेंस कमिट हुए, वही एब्डक्शन की मिसाल दी है, टार्चर की मिसाल दी है, कत्ल कर देते हैं या कोई और जुर्म कर देते हैं या रैंडम वगैरह में शामिल कर देते हैं, ETC का कोई जुर्म बन जाता है, ये इसमें शामिल हैं। अब बी में ये अबेटमेंट हो गई इसमें शामिल, और इसमें मोर देन ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड, इसमें थेफ्ट वगैरह आ गया, और ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि अगर सिमिलर ऑफेंसेस करते हैं 1 साल के अंदर अंदर उनका भी इकट्ठे ट्रायल हो सकता है। और बेटा ये इसमें मिसालें वगैरह दी गई हैं। अब विदड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस ऑन कन्विक्शन, इस पर बहुत बेहतरीन जजमेंट है बेटा, ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक मौका देगा तो हम देखेंगे। कंट्रोवर्शन क्रॉस वर्शन में ये नूर इलाही केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। साइटेशन इसकी आप लिख लें, PLD 1966 पेज है 708, इसको भी इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। और उसके बाद बेटा हम आ जाते हैं ये इस पर जजमेंट्स पर जो आज आप लोगों को बताइए हैं। शुरू में इन 4 जजमेंट्स को नेक्स्ट में मैं ब्रीफ फैक्ट्स भी बताऊंगा कि क्या क्या हुआ, किन जुर्म के ताबे पहले सज़ा हुई, FIR में क्या एलिगेशंस थी, ट्रायल क्या हुआ, फिर ऑनरेबल। अच्छा, अब ये फेडरल शरिया कोर्ट, बेटा ये जैसे सिविल जस्टिस सिस्टम में आप लोगों को पढ़ा रहा था ना स्पेशल कोर्ट्स का, फेडरल शरीयत कोर्ट में हमारे सिविल भी कुछ जाते हैं जो शरई मैटर्स होते हैं शरीयत के मुताबिक, और क्रिमिनल भी जाते हैं। हमारी ऑनरेबल फेडरल शरीयत कोर्ट दोनों साइड्स पर फैसले करती है। अब ये बेटा इसको जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है ना, जिसका अब इस वक्त क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हम देख रहे हैं, क्योंकि ये एज ए होल सारे लॉज हैं। अब आप ये देख लेना, इसमें पावर्स ऑफ एपीलेट कोर्ट सेक्शन 423 CRPC का है। फिर पुलिस रिपोर्ट में आप लोगों को बता रहा था, फिर 237 वही जो अभी हमने डिस्कस किया है कि सेक्शन इसका CRPC का, ये सारे आपस में कैसे मिक्स हो रहे हैं। इसमें आप हदूद लाज को देख लें, CRPC के मुख्तलिफ सेक्शंस देख लें, यकीनन इनमें कानून शहादत भी बाज़ औक़ात आ जाती है। ये 3, 4, 5 मुख्तलिफ लाज हैं, किस तरह ये एप्लीकेबल होते हैं, इन मज़ामीन पर किस तरह ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स कमेंट्स करती हैं कि जी कौन सा कानून का तकाजा किस तरह पूरा हुआ है। बेटा ये दूसरा ऑनरेबल फेडरल शरीयत कोर्ट का है, ये शरीयत एपीलेट जुरिडिक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। इसमें हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखेंगे। फिर उसके बाद बेटा ये SCMR का रिपोर्टेड केस है। अब ये कोई हेड मिस्ट्रेस थी खातून किसी गर्ल्स स्कूल की, तो उन पर ये एलिगेशन थी एंटी करप्शन की। अब ये देखें ना, पहले भी बता चुका हूँ, स्पेशल कोर्ट्स हैं जो हमारी क्रिमिनल की, PPC में भी और CRPC में भी इनका रेफरेंस दिया गया है। उस हवाले से इंशाअल्लाह ताला जब नेक्स्ट फैक्ट्स सारे बताऊंगा बेटा आप लोगों को, ये भी उसमें शामिल हो जाएंगे। अब ये 4 हैं, तो अगेन थोड़ा सा सुन लें। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 4 पोर्शन सारा मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट में हम 221 से 240 तक अच्छे तरीके से थोड़ा सा देखेंगे। फिर केस लाज भी डिस्कस होंगे, वो हमारा कंक्लूडिंग होगा चार्ज पर। अहमियत इसलिए है कि बेटा अक्सर इसमें इंटरव्यू में सवाल आ जाता है और इम्तिहान में भी आ जाता है। साहब का आप लोग पेपर देख लें, उसी हिसाब से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।